युद्ध भूई इस्राएल स्वदेश फेरिले आउ 197 भारतीय ऑपरेशन अजयर तृतीय पर्यायर भारतीय माने सुरक्षित भाव में आसी दिल्ली एयरपोर्ट रे पहुंची। दिल्ली पहुंचवा पर केंद्रमंत्री कौशल कुमार समस्त को स्वागत करने सहित सुविधा असुविधा बाबद में पचारि बुझुछंती। युद्धत्रस्त इस्राएल लोकंकर दयनीय स्थिति बखाणिबा सहित भारत को फेरी खुशी व्यक्त करिसेंती उद्धार भारतीय। भारत सरकार उद्यम जो सब संभव होइछि बोली कहिसेंती सेमाने। ऑपरेशन अजयर प्रथम बैच रे इस्राएल 212 जन एवं द्वितीय पर्यायर 235 भारतीय स्वदेश फेरिसेंती। चतुर्थ पर्यायर आज 274 जन भारतीय एवं भारत फेरुछंती। ऑपरेशन अजयर स्वदेश फेरवा इच्छुक भारतीयों लगी इस्राएल मागणारे चार्टर फ्लाइट एवं अन्य बंदोबस्त करिसेंती केंद्र सरकार। तेल अवीव एवं रामला रे सहायता एवं पंजीकरण व्यवस्था होइतबा बेले एपटे दिल्ली रे खोली 24 घंटा कंट्रोल रूम। सूचना अनुसार इस्राएल प्राय 18 ରୁ 20,000 I think it's a very good initiative by the Government of India, and I would like to thank our Minister Jaishankar for this initiative. And I think India was among the first countries which evacuated. And since we are so many Indians in Israel, it's a difficult task. But I think we took an initiative very early on. And it's amazing. We are very thankful, and more than us, I think our families are very happy, and they would be much more thankful. हाउस लीज ओवर हो चुका था और इस कंडीशन में मेरा नॉर्मल नहीं था बाकियों की तरह कि मैं पढ़ रहा हूँ या शेल्टर में छुप जा रहा हूँ तो काम हो जा रहा है। मुझे अदर भी टेंशन थी, मेरी फैमिली साथ में थी, मेरी बेटी और मेरी वाइफ। तो इस हिसाब से ये मेरे लिए रियल इवैक्यूएशन है और रियली थैंक फॉर एवरीवन हु इज इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस, स्पेशली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड ऑल द अथॉरिटी इन इजराइल, स्पेशली द एम्बेसी. They are really in touch. They called me yesterday 2:30 night for confirmation of my flight. मैं आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का और विदेश मंत्रालय का, गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का, माननीय रक्षा मंत्री जी का और भारत सरकार का मैं बहुत ही तहे दिल से उनका आभार और व्यक्त करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अपने देशवासियों के लिए इतना समर्पित है कि जो भी इजराइल में, तेल अवीव में जो लोग भी वहाँ पर हमारे भारतवासी हैं उनको अपने देश में वापस ला रहे हैं। They have also built very good infrastructure in that way. If we are alone without family, we can say still we are not necessary to come back. We can say okay, still not so much bad. Yeah, we can survive and like that way, even though in this situation. Yeah, we are very much thankful to our government of India. Really, we are very scared there, although you are very safe. But thanks to government of India for this initiative, we are thankful. It's very great initiative because especially the children were traumatic when there is siren goes on, and in this situation it was a very great effort, especially from the Ministry of External Affairs. And we are very thankful to our Honorable Minister Dr. S. Jaishankar to initiating this effort, and also we are very thankful for all the staff who managed so many people, contacted them and bring them to the airport, all the staff of the Embassy of India in Tel Aviv. I was studying in Weizmann Institute, which is in central Israel. So that area was pretty safe. So there was like a siren every 2 days or 3 days, whatever. And then we had shelters in our building. So we were told like just go to the shelters whenever we hear a siren. So yeah, and as like no one knows what will happen there. So we are happy to be back at home. When I got the news that I can come back to home to India, I was very happy, and I took the initiative, and the embassy in Israel was very helpful, and I'm grateful for the flight also that brought us all together here. What difficulties you faced to reach India? Personally, I have not, because I had lived there earlier. So there were people whom I knew, so they helped me. करंट सिचुएशन डेली का सायरन बजता है, कभी कभी रॉकेट आते हैं तो उस टाइम हम थोड़ा पैनिक होता है। आप कैसा फील कर रहे थे? थोड़ा पैनिक था जब खासतौर से बच्चों के साथ, क्योंकि जब सायरन आता था तो थोड़ा ज़्यादा पैनिक होता था।
क्योंकि हमें भागना पड़ता था, कभी खाना खा रहे हो तभी भागना। इंस्ट्रक्शंस थे वहाँ पे रहते होम कमांड एक ऐप है वहाँ पे, और उसमें उसके इंस्ट्रक्शन थे कि आपको वाटर सबके लिए 3 लीटर पर डे के हिसाब से पाइल अप करना है, शेल्टर के अंदर थोड़ा फूड और बेसिक नेसेसिटी वाली हो? जैसे। 5 दिन आपने कैसे व्यतीत किया? मुझे एक्चुअली मेरा वहाँ पे लीज ओवर हो गया था और मेरा सब कुछ ओवर हो गया था, मेरा स्टडी ओवर हो गया था, मैं शिफ्ट कर रहा था, मेरी 6 फ्लाइट कैंसिल हुई, तो मेरे लिए तो रियल इवैक्यूएशन था और मैं काफ़ी पैनिक था। बिकॉज रीज़न यही था, अगर मेरा वहाँ जॉब चल रहा होता तो मुझे इतना नहीं होता, मेरा घर का लीज ख़त्म हो चुका था। अब आप इंडिया में हो, क्या कुछ कहना चाहोगे? बहुत बहुत धन्यवाद सरकार को, और इस पैनिक सिचुएशन में उन्होंने काफ़ी मदद की। शुरू में तो लग रहा था नहीं जा पाएंगे, लेकिन एट द एंड सारे स्टूडेंट का नंबर आया। अभी 75% आई थिंक स्टूडेंट बाहर हो चुके हैं और सबका नंबर आ रहा है। रात को 2:30 बजे मुझे कॉल आया था कंफर्म करने के लिए कि आपका फ़्लाइट कंफर्म हो गया है। आप वहाँ पे स्टूडेंट थे ना? या मैं पोस्ट डॉक स्टूडेंट हूँ, PhD के बाद हम लोग रिसर्च करते हैं। दिल्ली इंडिया आने में क्या डिफिकल्टीज हुई वहाँ पे, ऐसा कुछ? फिलहाल अभी में सुबह में एक बार हमें कंफर्म हो गया, उसके बाद कोई डिफ़िकल्टी, हम टैक्सी लिए सीधे आ गए और एयरपोर्ट पे उन्होंने हमें फैसिलिटेट किया। अब पहले तो थोड़ा बहुत पैनिक था, हमारे सिटी में इतना ज़्यादा पैनिक नहीं था, बट जब सायरन आते थे तो थोड़ा होता था बच्चों के साथ। क्या होता था? सायरन जब वो उधर से रॉकेट होते, जब वो लोग भेजते हैं रॉकेट खमास वाले या गाजा वाले, तो यहाँ पे सायरन, उस दौरान आप लोग क्या करते थे बचने के हम लोग बचने के लिए शेल्टर में जाते थे। शेल्टर में? हाँ, वहाँ पे सारी बिल्डिंगों में शेल्टर बना रखे हैं तो बहुत सेफ होता है। तो बच्चे के साथ थोड़ी दिक्कत और पैनिक हो जाता है। हमारी सिटी में 1.5 मिनट, 1.5 मिनट, तो उतनी देर में हम पहुंच जाते थे, क्योंकि हमारा ग्राउंड फ्लोर था तो इसलिए हमारे शेल्टर बहुत पास में था। तो आई थिंक 30 सेकंड लगते थे हमें जाने के लिए, बट थोड़ा कभी कभी मेरी बेटी पैनिक हो जाती थी तो वही थोड़ा दिक्कत था।